अच्छा, अब हम करेंगे हेड एंड नेक. The head and neck are the most complicated areas of gross anatomy to understand and to learn from a practical view. Okay, we will do skull. Newborn skull. Fontanelles. ठीक है. The anterior fontanelle is diamond in shape. Anterior है ना, आगे पड़ा हुआ है तो ये क्या है, diamond. And lies between the two halves of the frontal bone and the two parietal bones. The fibrous membrane forming the floor of the anterior fontanelle is replaced by bone and closed by 18 months of age. ठीक है. anterior fontanelle क्या है, डायमंड इन शेप है और क्लोज कब होता है, 1.5 साल की उम्र में, 18 months of age. The posterior fontanelle is triangular in shape, lies between the two parietal bones and occipital bone, and it is usually closed by the end of the first year of the life. ठीक है. Next, a clinical significance of the anterior fontanelle, the heart rate, the intracranial pressure, and the degree of hydration can be examined by palpating the anterior fontanelle. ठीक है. Next है mastoid process. Not present at birth, the mastoid process develops during the first 2 years of life. ठीक है. नेक्स्ट है एडल्ट स्कल. एडल्ट स्कल में है एंटीरियर व्यू. द फ्रंटल बोन और forehead bone curves downward to make the upper margin of the orbits. The superciliary arches can be seen on either side. ठीक है. द ऑर्बिटल मार्जिन आर बाउंडेड. अब ये कहाँ पे होते हैं, अगर ऊपर देखें तो क्या होते हैं, फ्रंटल बोन सुपीरियरली. जाइगोमेटिक बोन कहाँ पे होती है, हमारी चीक बोन होती है ना जाइगोमेटिक, तो ये होती है लैटरली. द मैक्सिला का होता है इंफीरियरली. ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द फ्रंटल बोन मीडियली. Within the frontal bone, just above the orbital margins, there are two hollow spaces lined with mucous membrane called the frontal air sinuses. These communicate with the nasal cavity and they serve as voice resonators. The two nasal bones form the bridge of the nose. ठीक है. And with the maxilla, their lower border makes the anterior nasal aperture. The nasal cavity is divided into two parts by the bony nasal septum, which is largely formed by the. अब nasal cavity किससे बनती है, nasal septum से. ठीक है. डिवाइड हो रही है nasal septum से. अब ये किससे बनती है, बोमर बोन से बनती है. ठीक है. The superior and middle concha are shells of the bone that project into the nasal cavity form the ethmoid on each side. The inferior concha are separate bones. ठीक है. सुपीरियर और मिडल कॉन्का किससे बने हैं, एथमॉइड से बने हैं. ठीक है. और इंफीरियर कॉन्का जो है वो सेपरेट बोन्स है. द टू मैक्सिला फॉर्म द अपर जॉ. ठीक है. द टू मैक्सिला फॉर्म द अपर जॉ. ठीक है. मैंडिबल लोअर जॉ बनाती है. द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, part of the lateral wall of the nasal cavities and part of the floor of the orbital cavities. These two bones meet in the midline at the intermaxillary suture and they also form the lower margin of the nasal aperture. अब below the orbit क्या होता है, the maxilla is perforated by the infraorbital foramen. The alveolar process projects downward and together with the opposite side form the alveolar arch. ठीक है, which carries the upper teeth. ठीक है. Within each maxilla is a large pyramidal shaped cavity lined with mucous membrane called the maxillary sinus. This sinus communicates with the nasal cavity and serves as a voice resonator. Next is zygomatic bone. This zygomatic bone forms the prominence of the cheek and part of the lateral wall and floor of the orbital cavity. ठीक है. मीडियली इट आर्टिकुलेट्स किसके साथ कहते हैं, मैक्सिला के साथ. हमारी जाइगोमेटिक बोन क्या होती है, चीक बोन होती है ना, तो मीडियली हमारे क्या पड़ा हुआ है, मैक्सिला, जो कि क्या बना रहे हैं, अपर जॉ बना रहे हैं. लैटरली इट आर्टिकुलेट्स विद द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन टू फॉर्म द जाइगोमेटिक आर्च. नेक्स्ट है फ्रैक्चर्स ऑफ द नेजल बोन्स. Nasal fractures, because of the prominence of the nose, are the most common facial fractures. Fractures of the maxilla are common and usually result from a direct anteroposterior blow to the face. A severe blow to the orbit, as from a baseball, may cause the contents of the orbital cavity to explode downward through the floor of the orbit into the maxillary sinus. Damage to the infraorbital nerve may occur.
Fractures of the zygoma or zygomatic arch results from a blow to the side of the face and may be associated with many other fractures of the face as often seen in automobile accidents. ठीक है, नेक्स्ट है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर लेते हैं lateral view. The frontal bones form the anterior part of the side of the skull. It articulates with the parietal bone at the coronal suture. ठीक है, next is the parietal bone forms the side and the roof of the cranium and they articulate with each other in the midline at the sagittal suture. Behind they articulate with the occipital bone at the lambdoid suture. ठीक है, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, मैं आपको ये दोबारा बता देती हूँ. ठीक है, ये है ना हमारी स्कल यूं. अब ये है फ्रंटल बोन और ये जब आर्टिकुलेट करती है parietal बोन के साथ, ये फ्रंटल बोन है और ये जब आर्टिकुलेट करती है parietal बोन के साथ, तो ये किसके थ्रू करती है? कॉर्नल सुचर के थ्रू. ठीक है, अब ये है, अब हमारा कॉर्नल सुचर क्या करता है? हमारी बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली डिवाइड कर देता है. ठीक है, अब ये जो टू parietal बोन्स हैं, ये आपस में आर्टिकुलेट किसके थ्रू करती हैं? सैजिटल सुचर्स के थ्रू. हमारी बॉडी को टू एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स में कौन डिवाइड करती है? सैजिटल बोन. ठीक है, उसके बाद जब parietal बोन ऑक्सीपिटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, तो ये किसके थ्रू करती है? ये देखिए, ये लैम्डा बनाया ना, लैम्डा सुचर के थ्रू. ठीक है, और जो parietal बोन है टेम्पोरल बोन के साथ किसके थ्रू आर्टिकुलेट करती है? स्क्वेमस सुचर के थ्रू. क्लियर? ये मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. सबसे पहले क्या होती है? फ्रंटल बोन. फ्रंटल parietal से कैसे सेपरेट हुई है? कॉर्नल सुचर के थ्रू. फिर टू parietals आपस में कैसे सेपरेट हुई है? सैजिटल सुचर के थ्रू. ठीक है, जो parietal होती है वो ऑक्सीपिटल से किसके थ्रू सेपरेट हुई है? लैम्डॉइड सुचर के थ्रू. ठीक है, और फिर जो parietal है वो टेम्पोरल से किसके थ्रू सेपरेट हुई है? स्क्वेमस के थ्रू. ठीक है, नेक्स्ट है, the skull is completed at the side by the squamous part of the occipital bone, parts of the temporal bone, namely the squamous, tympanic, mastoid process, styloid process, and zygomatic process, and the greater wing of the sphenoid. Next, I note also the thinnest part of the lateral wall of the skull is where the anterior inferior corner of the parietal bone articulates with the greater wing of the sphenoid. ठीक है, अब टेरियन हम किसको कहते हैं? जहां पे parietal बोन, ये वाली parietal बोन जो है किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड के साथ. ठीक है, इस पार्ट को हम टेरियन कहते हैं और ये थिनेस्ट पार्ट होता है और यहाँ पे क्या होती है? एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है. ठीक है, और उसके बाद है एंटीरियर क्रेनियल फोसा. अच्छा, ये देखें, superior view of the base of the skull. The base of the skull is divided into three cranial fossa: the anterior, middle, and posterior. The anterior cranial fossa is separated from the middle cranial fossa by the lesser wing of the sphenoid. The middle cranial fossa is separated from the posterior cranial fossa by the petrous part of the temporal bone. ठीक है, जो anterior सेपरेट हो रही है middle से, वो किससे सेपरेट हो रही है? बाय द, किससे सेपरेट हो रही है? लेसर विंग ऑफ द स्फीनॉइड से. ठीक है, और जो मिडल है वो सेपरेट हो रही है पोस्टीरियर से, किससे? पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से. ठीक है, नेक्स्ट है एंटीरियर क्रेनियल फोसा. द एंटीरियर क्रेनियल फोसा lodges the frontal lobes of the cerebral hemisphere. The perforation of the cribriform of the ethmoid transmit the olfactory nerves. ठीक है ना, आपको पता है ना एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या था? क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होती है, वहां से क्या ट्रांसमिट होती है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व, olfactory nerves. Next है middle cranial fossa. The lateral parts of the middle cranial fossa lodge the temporal lobes of the cerebral hemisphere. ठीक है ना, आपको पता है ना parietal ऊपर होता है, temporal नीचे होता है. जो lateral part होगा middle cranial fossa का, उसमें क्या होगा? temporal lobes of the middle cerebral hemisphere होंगे. The middle part is raised and formed by the body of the sphenoid bone. ठीक है,
इन फ्रंट इज द सल्कस chiasmaticus which is related to the optic chiasma. आपको पता है ना मिडल में ये होता है. इफ देयर इज एनी इमेज आई विल शो यू दिस वन. देखें ये क्या है, ये हम कर रहे हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है. और ये सेपरेट किससे हुआ हुआ है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड से, मिडल क्रेनियल फोसा से. और इसके अंदर क्या है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है जहाँ से क्या पास करती है, अल्फैक्टरी नर्व. अब यहाँ पे देखें ये आ गया मिडल क्रेनियल फोसा. इसके लेटरल पार्ट में क्या पड़ी हुई है, टेम्पोरल लोब पड़ी हुई है, ठीक है. और इसके मिडल में क्या है, सल्कस लिमिटेंस है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक क्याज्मा होता है और पिट्यूटरी होता है, ठीक है. दी which is related to the optic chiasma and leads laterally to the optic canal on each side. The optic canal क्या करती है, transmits the optic nerve and the ophthalmic artery, ठीक है. ऑप्टिक कैनाल से क्या क्या पास कर रहे हैं, ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी. Posterior to the sulcus is an elevation called the tuberculin sella. Behind the elevation is a deep depression called the sella turcica. बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक कैनाल से क्या पास हो रहा है, सेला टर्शिका से क्या पास हो रहा है, which lodges the hypophysis cerebri. The sella turcica is bounded posteriorly by a scale part of bone called the dorsum sli. This superior, अच्छा नेक्स्ट ये छोड़े, आप ये पता होना चाहिए आपको कि जो डॉर्सम स्लाई है इसमें क्या करता है कि इट गिव्स अटैचमेंट टू द टेंटोरियम सेरिब्लाई, ठीक है. जो डॉर्सम स्लाई है सेला टर्शिका जो है उसके बिहाइंड क्या है, डॉर्सम स्लाई है और वो किसको अटैचमेंट देता है, टेंटोरियम सेरिब्लाई को, ठीक है. द कैवर्नियस साइनस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द साइड ऑफ द बॉडी द स्फिनाइड बोन, ठीक है. अब ये देखें, ये सेला टर्शिका होगा ना, यहाँ पे सब कुछ होगा, तो ये बॉडी ऑफ स्फिनाइड है, ठीक है. यहाँ पे क्या हुई, ये जो पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना, ये स्क्विमस पार्ट है. यहाँ पे क्या होता है, कवर्नस साइनस होता है, ठीक है. नेक्स्ट है, दिस फिनॉइड बोन रिजेंबल्स अ बैट. इट हैज अ सेंट्रली प्लेस्ड बॉडी विद greater and lesser wings that are outstretched on each side. The body of the sphenoid contains the sphenoid air sinuses which are lined with mucous membrane, communicate with the nasal cavity and serve as voice resonators, ठीक है. अब हम नेक्स्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो हेड एंड नेक में है, जो आपको एमसीक्यूज आते हैं. अभी आप लोग कर भी रहे हैं एमसीक्यूज, यू गाइस नो. ये आपको ना नींद में भी आने चाहिए. एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या होता है, परफोरेशंस इन द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. और ये कौन सी बोन होती है, एथमॉइड बोन होती है. यहाँ से क्या पास करती है, अल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है. अब मिडल क्रेनियल फोसा में हम आ गए, तो ऑप्टिक कैनाल होती है. ऑप्टिक कैनाल किस में होती है, लेसर विंग ऑफ द स्फिनॉइड में. यहाँ से क्या पास करता है, हमने अभी पढ़ा था ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है. फिर होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर लोकेशन क्या है, बिटवीन लेसर एंड ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फिनॉइड, ठीक है. यहाँ से क्या पास करती है, लैक्रिमल फ्रंटल, ठीक है, ट्रॉक्लियर, ओक्यूलोमोटर, नेजोसिलियरी एंड एब्ड्यूसेंट नर्व. इसको हम ऐसे समराइज करते हैं कि यहाँ से ऑप्टिक कैनाल से तो सेकंड क्रेनियल नर्व पास कर गई ना, अब थर्ड, फोर्थ और सिक्स, ठीक है, वो कहाँ से पास करती हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से. इसके अलावा कौन सी नर्व पास करती हैं, लैक्रिमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी, ठीक है. और वेन कौन सी पास करती है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन पास करती है, ठीक है. नेक्स्ट है फोरामेन नुटेंडम. इसको आपने याद कैसे करना है, एस रोज से, ठीक है. पहले हमने क्या किया, जो मिडल क्रेनियल फोसा में है ना, ऑप्टिक कैनाल तो आपको याद रहेगी. उसके बाद देखें, अभी हमने ये कर लिया, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कर लिया. उसके बाद क्या किया, रुटेंडम. ये किस में है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड में. अब यहाँ से क्या पास करती है, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है. अब उसके बाद है फोरामेन ओबेर. ये किस में है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड में. यहाँ से क्या पास करती है, मैंडिबुलर डिवीजन. आपको पता है ना कि ट्राइजेमिनल की 3 नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक होती है, मैक्सिलरी होती है और मैंडिबुलर होती है, ठीक है. अब यहाँ से मैक्सिलरी पास करिए. अच्छा, और वेट अ मिनट.
अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या आ गए हम, फोरामेन ओवेल पे आ गए। यहाँ से क्या पास करिए, फिफ्थ की मैंडिबुलर डिवीजन पास करिए ट्राइजेमिनल नर्व की, और लेसर पेट्रूजल नर्व पास करिए, ठीक है, लेसर पेट्रूजल नर्व। अब हमने कर लिया एस रो, अब हम करें एस, एस रोज, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, फोरामेन स्पाइनोजम आ गया, और फोरामेन स्पाइनोसम से किस में होता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड में होता है, और यहाँ से क्या पास करती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ओके गाइस, यहाँ पे ना एक एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी भी किसी फोरामेन से पास करती है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, मैं वो सर्च करके ना आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ। फिर है फोरामेन लेसिनम। फोरामेन लेसिनम यहाँ पे होता है बिटवीन द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन एंड द स्फिनॉइड, और यहाँ से क्या पास करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब हम जाते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में क्या होता है, फोरामेन मैग्नम होता है, ये किस में होता है, ऑक्सीपिटल में। अब यहाँ से क्या पास करता है, देखें ना, यहाँ से ब्रेन पास करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और क्या पास करते हैं, स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व एंड द राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्ट्स, ठीक है। फिर होती है हाइपोग्लोसल कैनाल, इसके नेम से शो हो रहा है कि ये ऑक्सीपिटल लोब में है, तो ये क्या पास करेगी, हाइपोग्लोसल नर्व। अब देखिए हमने 11th भी पास कर दी, 12th भी पास कर दी, अब बाकी रह गई है, तो वो आ जाते हैं जुगुलर फोरामेन। ये कहाँ पे होते हैं, आपको बेशक लोकेशन को आप स्किप कर दें, लेकिन एक रीड कर लीजिएगा, बिटवीन द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल एंड द कंडाइलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल। यहाँ से क्या पास करती है, आप देखें, ग्लॉसोफ्रेंजियल 9, 10th और 11th, ठीक है, ये यहाँ से पास करती हैं। आपको पता है ना, सेसरी नर्व के 2 पार्ट्स होते हैं, तो ये स्पाइनल पार्ट जो होता है यहाँ से पास करता है, और यहाँ से सेसरी नर्व भी पास करती है, और यहाँ के क्या होता है कि सिग्मोइड साइनस बिकम्स द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अब यहाँ पे जुगुलर फोरामेन में जो सिग्मोइड साइनस होता है वो क्या बन जाता है, इंटरनल जुगुलर वेन। फिर आ जाता है इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स, ये किस में होता है, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। अब यहाँ से क्या पास करते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर एंड फेशियल नर्व। अब हमने सारी नर्व्स पास कर ली ना, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है क्लिनिकल नोट्स। Fractures of the middle cranial fossa. Fractures of the middle cranial fossa are common because this is the weakest part of the base of the skull. This weakness is caused by the presence of numerous foramina and canals in this region. The cavities of the middle ear and the sphenoidal ear sinuses are particularly vulnerable. ठीक है, अब हम करते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पे है ना, जो हमारा हेड एंड नेक में आता है, एक तो वो नर्व्स हैं, और सेकंड है टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, मैंडिबल, और क्या है, मसल्स, ठीक है। अब हम कहते हैं मैंडिबल। The mandible or lower jaw is the largest and strongest bone of the face, and it articulates with the skull at the temporomandibular joint. The mandible consists of a horseshoe-shaped body and a pair of rami, ठीक है ना, बॉडी सेंटर में और rami जो उसकी साइड्स पे होते हैं. The body of the mandible meets the ramus on each side at the angle. On its external surface in the midline, the body of the mandible has a faint ridge called the symphysis menti. ठीक है. The mental foramen can be seen below the second premolar teeth. ठीक है. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट कौन से टीथ के अपोजिट ओपन हो रही होती है, ठीक है ना. अपर कौन से मोलर कौन सा होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड, ठीक है. और यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मेंटल फोरामेन कहाँ पे होता है, बिलो द सेकंड प्रीमोलर टीथ, एंड इट ट्रांसमिट्स वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व. ठीक है. अच्छा, ये देखें, ये क्या है, ये बॉडी है, ये रिमाई है, और ये एंगल पे मीट करते हैं, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, मेंटल फोरामेन होता है. अब हम देखते हैं मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस कौन सी होती है, जो हम अंदर की तरफ देखेंगे ना, वो मीडियल साइड होगी. On the medial surface of the body of the mandible is the submandibular fossa for the submandibular salivary gland. In front of this fossa is the sublingual fossa for the sublingual salivary gland. Between these fossa runs an oblique ridge called the mylohyoid line, which gives attachment to the mylohyoid muscle. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब मैंडिबुलर फोसा सबलिंगुअल फोसा से किसके थ्रू सेपरेट हो रहा है, माइलोहाइड लाइन के थ्रू. ठीक है. और जी किसको अटैचमेंट देती है, माइलोहाइड मसल को. ठीक है. नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एल्व्यूलर पार्ट. ठीक है, आपको पता है ना,
ये क्या है? एल्व्यूलर प्रोसेस, जहाँ पे टीथ अटैच होते हैं. In adults, it contains 16 sockets for the root of the lower teeth. The ramus of the mandible is vertical and has an anterior coronoid process and a posterior condyloid process. ठीक है? और head. The two processes are separate by the mandibular notch. ठीक है? The below the condyloid process is is a short neck. The mandibular foramen lies on the medial surface of the ramus and it transmits the inferior alveolar nerve. ठीक है. जो हमने मेंटल फोरामेन पढ़ा था वो भी इंफीरियर एल्वियर नर्व ट्रांसमिट कर रहा था और मेंटल फोरामेन भी. This foramen leads into the mandibular canal and then opens onto the lateral surface at the mental foramen. The light process or head of the mandible articulates with the temporal bone at the temporomandibular joint. Next have fractures of the mandible. The mandible is horseshoe shaped and it forms part of a bony ring with the skull. Traumatic impact is transmitted around the ring, causing a single fracture or multiple fractures of the mandible, often far removed from the point of impact. अब ये हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन. The temporomandibular joint articulates above with the mandibular fossa, ठीक है, and the articular tubercle of the temporal bone. It articulates below with the head of the mandible. ठीक है. अब टाइप. The temporomandibular joint is a The temporomandibular joint is a synovial joint. The fibrocartilaginous disc divides the joint into upper and lower cartilage. ठीक है. कैप्सूल. The capsule encloses the joint. इसके ligaments होते हैं. Lateral temporomandibular ligament. The lateral temporomandibular ligament is attached above to the articular tubercle at the root of the zygomatic arch and below to the neck of the mandible. The fibers extends downward and backward. आपको ये पता होना चाहिए क्या करता क्या है. ये lateral temporomandibular ligament है. ये क्या करता है? This ligament limits the posterior movement of the mandible. ठीक है. Next is the sphenomandibular ligament. This sphenomandibular ligament is attached above to the spine of the sphenoid and below to the bony projection of the mandibular foramen. Its function is unknown. फिर है stylomandibular ligament. This stylomandibular ligament is attached to the styloid process above and to the angle of the mandible below. ठीक है. इसका फंक्शन भी अननाउन है. हमें lateral temporomandibular ligament का फंक्शन क्या है? It limits the posterior movement of the mandible. ठीक है. नेक्स्ट है आर्टिकुलर डिस्क. The articular disc is an oval disc of fibrocartilage. It is attached in front to the tendon of the lateral pterygoid muscle and posteriorly by fibrous tissue to the head of the mandible. The circumference of the disc is attached to the capsule. The disc permits gliding movements in the upper part of the joint. आपको ये पता होना चाहिए ग्लाइडिंग मूवमेंट्स किस में हो रही है? अपर पार्ट ऑफ द जॉइंट में. और हिंज मूवमेंट्स हो रही हैं किसमें? इन द लोअर पार्ट ऑफ द जॉइंट में. ठीक है. साइनोवियल मेम्ब्रेन. The synovial membrane lines the capsule in the upper and lower capsules. Next is nerve supply. Auriculotemporal and mesenteric nerve branches of the mandibular division of the trigeminal nerve supply करते हैं. कौन supply करता है? Mandibular division की branches. कौन सी? Auriculotemporal और mesenteric nerve. ठीक है. नेक्स्ट है मूवमेंट्स एंड मसल्स दैट प्रोड्यूस मूवमेंट. अब हमने करना है प्रोट्रूजन. अब आप बैठे हुए अपने जॉ को फॉरवर्ड मूव करें, आगे की तरफ करें. इसको कहते हैं प्रोट्रूजन. द हेड ऑफ द मैंडिबल एंड द आर्टिकल डिस्क मूव फॉरवर्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द जॉइंट. अब प्रोट्रूजन कौन करता है? लैटरल टेरिगॉइड मसल. अब आप बैठे हुए हैं, अगर आपने अपना माउथ नॉर्मली क्लोज किया हुआ है, अपने जॉ को पीछे लेके जाएं. इसको कहते हैं रिट्रैक्शन. द हेड ऑफ द मैंडिबल एंड द आर्टिकल डिस्क मूव बैकवर्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द जॉइंट. अब ये कौन करता है? पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस मसल. ठीक है. प्रोट्रूजन कौन करता है? लैटरल टेरिगॉइड. और रिट्रैक्शन कौन करता है? पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस मसल. ठीक है. अगर आप मैंडिबल को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आपका माउथ ओपन हो जाएगा ना. अब ये कौन करता है? द हैंड ऑफ द मैंडिबल रोटेट्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब ये कौन करता है? इसको मैंने याद किया था डीजेएम. डीजेएम डाइगैस्ट्रिक जेनियोहाइड और माइलोहाइड. ठीक है. डीजेएम डाइगैस्ट्रिक जीनोहाइड और माइलोहाइड मसल. अब एलिवेशन ऑफ मैंडिबल करेंगे तो क्या होगा? माउथ क्लोज हो जाएगा. द हेड ऑफ द मैंडिबल रोटेट्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क एट द सेम टाइम द पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द
Temporalis muscle pull back the hand of the mandible and the articular disc is pulled backward by fibroelastic tissue. अब ये कौन कहते हैं? TMM, ठीक है? TMM, टेम्पोरलिस, मैसिटर एंड मिडियल टाइरिकॉइड मसल, ठीक है? ये क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं मैंडिबल की, ठीक है? अब हमने प्रोट्रूजन कर ली। प्रोट्रूजन होता है फॉरवर्ड मूव करना, वो कौन करता है? लेटरल टेरिकॉइड। और रिट्रैक्शन कौन करवाता है? पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरलिस मसल। उसके बाद माउथ ओपन कौन करवाता है? डीजीएम, डाइगेस्ट्रिक, जेनिहोइड और माइलोहोइड मसल, ठीक है? डीजीएम। और एलिवेशन ऑफ मैंडिबल, माउथ क्लोज कौन करवाता है? मीडियल टेरिकॉइड, मैसिटर और टेम्पोरलिस, ठीक है? लेटरल च्यूइंग मूवमेंट्स, alternate protruding and retracting of the mandible on each side. अब है डिसलोकेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. Dislocation of the temporomandibular joint sometimes occur when the mandible is depressed. The head of the mandible and the articular disc move forward when they reach the summit of the articular tubercle. In this position, the joint is unstable and a minor blow on the chin or a sudden contraction of the lateral pterygoid muscle. अच्छा, जब हम ज्वाइन करते हैं ना, जब हम जमाई लेते हैं, तब lateral pterygoid muscle इन्वॉल्व होता है. May be sufficient to pull the disc forward beyond the summit and dislocation occurs. ठीक है? अब हम कर लेते हैं मसल्स. आपने मसल्स का क्या करना है? इनकी नर्व सप्लाई करनी है और इनका एक्शन करना है. मैसिटर, ये आपको मसल ऑफ मैस्टिकेशन का बताना चाहिए. कौन से? मीडियल टाइरिकॉइड, लेटरल टाइरिकॉइड, टेम्पोरलिस और मैस्टिटर. इन सब को कौन सप्लाई करिए? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था ना कि माउथ क्लोज कौन करवाता है? मैस्टिटर. रेजिस द मैंडिबल टू ऑक्लूड टीथ इन मैस्टिकेशन. अच्छा, अब आप टेम्पोरल इसका देखें. इसका इंपॉर्टेंट है. इसके जो एंटीरियर और सुपीरियर फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं मैंडिबल को. क्या मतलब? क्लोज करवाते हैं माउथ को, ठीक है? और जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिट्रैक्ट करते हैं मैंडिबल को, ठीक है? अब लैटरल टेरिकॉइड क्या करते हैं? पुल्स द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड डिस्क फॉरवर्ड. ये क्या करवाता है? प्रोट्रूजन करवाता है, ठीक है? और टेम्पोरलिस की जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? रिट्रैक्शन, ठीक है? और जो इसके एंटीरियर और सुपीरियर फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एलिवेट द मैंडिबल करते हैं. फिर ये मीडियल टेरिकॉइड, ये क्या कहता है? रेजिस करता है मैंडिबल को, ठीक है? अच्छा, अब हम कहते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल. When a sternocleidomastoid muscle contracts, it appears as an oblique band crossing the side of the neck from the sternoclavicular joint to the mastoid process of the skull. It divides the neck into anterior and posterior triangles. ठीक है? नेक को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल में कौन डिवाइड करता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल. और पोस्टीरियर ट्रायंगल को कौन डिवाइड करता है? इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहाइड, ठीक है? द एंटीरियर बॉर्डर कवर्स द कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है? द इंटरनल जुगुलर वेन एंड द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. मैंने आपको बताया था ना कि एंटीरियर बॉर्डर के साथ क्या क्या होता है? इंटरनल जुगुलर वेन होती है और कैरोटिड आर्टरीज होती है और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं. इट आल्सो ओवरलैप्स द थायराइड ग्लैंड. द मसल इज कवर्ड सुपरफिशियली बाय स्किन फेशिया प्लैटिज्मा मसल. और प्लैटिज्मा को कौन सप्लाई करती है? फेशियल नर्व. उसकी कौन सी ब्रांच? सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है? एंड द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. अच्छा, the deep surface of the posterior border is related to the cervical plexus, phrenic nerve and the upper part of the brachial plexus. ठीक है? Next है clinical nose. Congenital torticollis is caused by the excessive stretching of this muscle during a difficult labor. The muscle is damaged and the consequent repair with fibrous tissue causes that muscle to be shortened. ठीक है? Next है superficial cervical fascia. The superficial cervical fascia is a thin layer of connective tissue that encloses the platysma muscle. Also embedded within it are cutaneous nerves, superficial veins, and a superficial lymph nodes. Then a deep cervical fascia. The deep cervical fascia supports the muscle vessel and the viscera of the neck. In certain areas, it is condensed to form well-defined fibrous sheets called the investing layer. आपको पता है ना, प्री-ट्रेकियल लेयर होती है और प्री-वर्टिब्रल लेयर होती है और एक इन्वेस्टिंग लेयर भी होती है, ठीक है?
ठीक है. इट इज आल्सो कंडेंस्ड टू फॉर्म द कैरोटिड शीट. अब इन्वेस्टिंग लेयर क्या होती है? The investing layer is a thick layer that encircles the neck. It splits to enclose the trapezius and the sternocleidomastoid muscle. And you guys know that both these muscles are supplied by the accessory spinal nerve. Pretracheal layer. The pretracheal layer is a thin layer that is attached above to the laryngeal cartilage, thyroid and the parathyroid glands. ठीक है. अब ये प्री ट्रेकियल लेयर है और ये कवर किसको कर रही है? थायराइड को और पैराथायराइड को. क्यों? क्योंकि ये सबसे आगे पड़े हुए हैं. फॉर्मिंग अ शीट फॉर देम एंड इनक्लोजेस द इंफ्राहाइड मसल. ठीक है. प्री वर्टिब्रल लेयर. द प्री वर्टिब्रल लेयर इज अ थिक लेयर दैट passes like a septum across the neck behind the pharynx and esophagus and in front of the prevertebral muscles and the vertebral column. It forms the facial floor of the posterior triangle and it extends laterally over the first rib into the axilla to form the axillary sheet. अब जो प्री वर्टिब्रल लेयर होती है उसकी ही कंटिन्यूशन होती है एक्सिलरी शीट. ठीक है. नेक्स्ट है कैरोटिड शीट. The carotid sheet is a local condensation of the prevertebral, pretracheal, and the investing layer of the deep cervical fascia that surrounds the common and internal carotid arteries, internal jugular vein, वेगस नर्व एंड द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. अब कैरोटिड शीट तीनों लेयर से बन गया. इन्वेस्टिंग लेयर से भी, प्रीट्रेकियल से भी और प्रीवर्टिब्रल से भी. ठीक है. अब इसमें होता क्या है? इसके नियम से शो हो रहा है. कैरोटिड में क्या होगा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स. ठीक है. अब नेक्स्ट है डीप फेशिया एंड facial spaces. The deep fascia and facial spaces are important because infection in the mouth, teeth, pharynx, and esophagus can spread among the facial planes and spaces. The tough fascia can determine the direction and extent of the spread. Next है stylocervical ligament, stylohyoid ligament. ये क्या करता है? Connects the styloid process to the lesser cornu of the hyoid bone. ठीक है. Stylomandibular ligament connects the styloid process to the angle of the mandible. Sphenomandibular ligament connects the spine of the sphenoid bone to the lingula of the mandible. फिर है pterygomandibular ligament. ये क्या? Connects the hemular process of the medial pterygoid plate to the posterior end of the mylohyoid line of the mandible. It also gives attachment to the superior constrictor and the buccinator muscles. ठीक है. अब हम नेक्स्ट करेंगे अपने मसल्स. ओके. अब हम करें सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द साइड ऑफ द नेक. तो ये कौन से हैं? प्लेटिज्मा होते हैं. देखे ना साइड ऑफ नेक पे. ये क्या है? स्टेनोक्लिडोमेस्टाइड. और ये क्या है? ट्रेपीजियस. ठीक है. प्लेटिज्मा इसको कौन सप्लाई करती है? मैंने आपको क्या बताया था? सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. अब ये क्या करता है? डिप्रेसेस द मैंडिबल एंड द एंगल ऑफ द माउथ. ठीक है. ये क्या करता है? माउथ ओपन करने में हेल्पफुल होता है. अब ट्रेपीजियस इसको कौन सप्लाई करता है? स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व एंड C3 एंड C4 स्पाइनल नर्व्स. और स्टेनोक्लिडोमेस्टाइड को भी मेन क्या होता है? स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व एंड C2 एंड C3 स्पाइनल नर्व्स. अब ट्रेपीजियस क्या करता है? इसके अपर फाइबर्स क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं स्कैपुला को. ठीक है. आपको पता है ना, हम जब श्रगिंग करते हैं तो श्रगिंग में ट्रेपीजियस यूज होता है. इसके मिडिल फाइबर्स क्या करते हैं? पुल द स्कैपुला मीडियली. अपर ने क्या किया? एलिवेट किया स्कैपुला को. मिडिल फाइबर्स ने क्या किया? पुल द स्कैपुला मीडियली. और लोअर फाइबर्स ने क्या किया? पुल द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला डाउनवर्ड. ठीक है. अच्छा. अब sternocleidomastoid muscles of the two sides acting together extend the head and flex the neck. One muscle acting alone rotate the head to the opposite side. अगर दोनों साइड के एक्ट करें तो वो क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं हेड को और फ्लेक्स करते हैं नेक को. और अगर एक साइड का एक्ट करते हैं तो तब क्या करता है? ये रोटेट करता है हेड को टू द अपोजिट साइड. ठीक है. अब हम नेक्स्ट करते हैं अपने मसल्स. आपको पता है ना कि हाइड बोन होती है. अब जो हाइड बोन के ऊपर मसल है वो सुप्राहाइड है और जो उसके नीचे है वो इंफ्राहाइड है. अब देखते हैं सुप्राहाइड मसल्स कौन से होते हैं. एक ये होता है डाइगेस्ट्रिक. ठीक है. और आपको पता है कि सबसे पहले एंटीरियर आता है या पोस्टीरियर? एंटीरियर आता है ना. तो एंटीरियर हमने पढ़ लिया था कि डाइगेस्ट्रिक किससे आ रहा था? फर्स्ट ब्रेकियल आर्च से आ रहा था. तो इसको कौन सप्लाई करेगी? माइलोहाइड नर्व. अगर आपको याद नहीं भी रहता तो आपने याद रखना है कि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. ठीक है. और पोस्टीरियर बैली को कौन सप्लाई करेगी? फेशियल नर्व. ठीक है. अब उसके बाद देखें इसकी फंक्शन. ये क्या करती है?
एंटीरियर बेली डिप्रेसेस द मैंडिबल और एलिवेट्स द हाइड बोन। ठीक है, या तो ये मैंडिबल को डिप्रेस करती है या हाइड, जो सुपर हाइड है ना, उन्होंने क्या करना है, हाइड को एलिवेट करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। इनका भी यही फंक्शन है, डिप्रेसेस द मैंडिबल और एलिवेट्स द हाइड बोन। ठीक है, अब उसके बाद होता है कौन से है, स्टाइलोहाइड। ये क्या करेगा, एलिवेट करेगा हाइड बोन को, इसको भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद है माइलोहाइड। माइलोहाइड को कौन सप्लाई करेगी, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, एक तो एंटीरियर वैली को और एक माइलोहाइड को कौन सप्लाई करिए, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो पोस्टीरियर वैली और स्टाइलोहाइड है, जो स्टाइल मारे है, उसको कौन सप्लाई करेगी, फेशियल नर्व। ठीक है, अच्छा, ये भी देखिए, इन्होंने भी एलिवेट करना है हाइड को और डिप्रेस करना है मैंडिबल को। उसके बाद है जेन्यूहाइड। जेन्यूहाइड जो होती है ना, अब ना यहाँ पे हर मसल की एक एक्सेप्शन होगी। जो पैलेट को सप्लाई कर रहे होंगे वो सारे 12 क्रीनियल नर्व से होंगे, एक एक्सेप्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होगी, जहाँ पे आगे जेन्यूहाइड, उसको कौन सप्लाई करती है, C1 थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, फंक्शन लेकिन इन सबका सेम होगा, एलिवेट द हाइड बोन और डिप्रेस द मैंडिबल। ठीक है, अब हमने कर लिया सुप्राहाइड मसल। इनमें क्या है, डाइगेस्ट्रिक, उसकी एंटीरियर बेली को कौन सप्लाई करती है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व या माइलोहाइड नर्व। पोस्टीरियर बेली को कौन सप्लाई करती है, फेशियल नर्व। फिर अगर स्टाइल, जो स्टाइल मार है वो कौन करे, फेशियल नर्व। जो माइलोहाइड है उसको भी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और उसके बाद जेन्यूहाइड को कौन सप्लाई करता है, C1 थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व। उसके बाद आ गया इंफ्राहाइड मसल्स। इंफ्राहाइड मसल में क्या आता है, पहले स्टेनोहाइड। ठीक है, अब देखें आपने यहाँ पे देखना है कि स्टर्नम होती है, स्टर्नम से दो मसल निकल रहे हैं, एक हाइड के साथ अटैच हो गया, एक थायराइड के साथ अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद पहले हम मसल्स की नेम कर देते हैं। उसके बाद एक थायराइड से निकला और वो हाइड के साथ अटैच हो गया, उसको क्या बोलेंगे, थायरोहाइड। फिर एक ओमोहाइड हो गया। अब ओमोहाइड की टू बेलीज होती है, एक इंफीरियर बेली होती है और एक सुपीरियर बेली होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं इंफ्राहाइड मसल। इन सबको कौन सा सप्लाई करता है, आपने एज अ जनरल रूल याद रखना है कि इंफ्राहाइड मसल को आंसा सर्वाइकैलिस सप्लाई करती है, और आंसा सर्वाइकैलिस क्या होती है, C1 C2 और C3। ठीक है, स्टेनोहाइड को और स्टेनोथायराइड को, और इन सब ने क्या करना है, स्टेनोहाइड ने क्या करना है, डिप्रेस करना है हाइड बोन को, क्यों, ये हाइड के साथ अटैच है। स्टेनोथायराइड ने क्या करना है, डिप्रेस करना है लेरिंक्स को। फिर है थायरोहाइड। थायरोहाइड को कौन सप्लाई करती है, C1 थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, ये क्या करते हैं, डिप्रेसिस द हाइड बोन और एलिवेट्स द लेरिंक्स। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, डिप्रेस करना हाइड को या एलिवेट करना लेरिंक्स को। ठीक है, इसने डिप्रेस करना था लेरिंक्स को। अब ओमोहाइड की इंफीरियर बेली को कौन सा सप्लाई करता है, आंसर सर्वाइकलिस, और सुपीरियर बेली को सर्वाइकलिस। और इन्होंने क्या करना है, डिप्रेसिस द हाइड बोन करना है। ठीक है, अब हम कहते हैं एंटीरियर एंड लेटरल वर्टिब्रल मसल्स। ठीक है, ये है, ये इतना बहुत है आपके लिए, ये मसल्स कर ले हम। मुस्कान, उसामा, चलें, ये मसल्स हम कल कर लेंगे। ओके, अब 9 PM पे आप